Are you sure? इसकी कॉफी नहीं खुल रही Up, down, up, down. And this is a startup podcast. Well done. Hello and welcome to the very first podcast of this startup interaction series. And आज हमारे साथ 3 startup owners, founders हैं. Please introduce yourselves एक बार. My name is Chirag Arora and I'm the founder of Horeca, the next big thing. My name is Aniket Khemka and I am founder of Print Dash Technologies Private Limited. Are you sure? Yes, I am 100% sure. Okay. I am also founder of Brandlane. Hi everyone, I'm Kritish and I'm founder of Kyrex. Okay, so based on the information that we have, आप तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, right? You have worked together for quite some long. Just as a little ice-breaking activity, ताकि हमारी audience को better पता चले कि आप कौन हैं, आपके brands क्या हैं, आपको एक दूसरे के brands introduce करना है. Okay, go ahead. Okay, so Aniket ka I'll do. So Aniket has this thing called Print Dash. It's not the thing, it's a startup. So basically into Print Dash, we have got 2 different segments. First is the B2B segment where he provides all the printing solution for the business to business age. For example, all the stationery, all the hoardings and anything regarding into your business cards, everything. And into the B2C section, he has got more like into a gifting section where if I want to gift calendars and different materials like notebooks, stationery and keychains. So all this. Are you his partner in business? No. एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई. अच्छा, okay. नहीं ऐसे एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है काफी. इतना डेप्थ में पता है. एटलीस्ट इंटरप्ट नहीं कर रहा. जितना मैं समझ पा रही हूँ B2C segment में अनिकेत also has gifting options which Yes. people might use for like their family, Yeah. for their friends. आपने कभी personally इनकी brand से gifting के लिए कुछ use करा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है. और कैसा था आपका अनिकेत response? बताएंगे क्या बनाया था आपने मेरे लिए, बताओ. जरूर आप जानना चाहेंगे मेरे से कि मैंने आपके लिए क्या क्या बनवाया था. अबे भाई बोलो भाई. अच्छा. जरूर आप जानना चाहेंगे. ये कैसे डिस्क्लेमर लाइन थी. Before ये episode censor हो जाए, let's move to some other person. आप अनिकेत आप किसका हाँ start? नहीं पहले बताओ तो आपने मेरे लिए बनाया क्या था. आप जानना नहीं चाहेंगे क्यों नहीं पब्लिक के चाहूंगा? सामने. क्यों ऐसा क्या बना दिया भाई. Okay. आपने anyway, पोलरॉइड जी तो बनवाए थे. हाँ, पोलोरॉइड ही बनवाए थे. तो ऐसे before it gets censored, okay. Aniket, I Okay. think now you will have to introduce Chirag startup. Actually, I don't know much about his startup. all I It's- know Is there much about your startup? No, nothing. It's just a quick commerce platform. Yes. He's Horeca. an aggregator who provides all the vendors a platform to sell their appliances yeah. in Basically, with a fun particular fact- geographical demographical area within like 1 hour or 2 hour. Heavy appliances it takes like Chirag 5 hours or 6 hours to No, get 2 hours only. Only 2 hours. Yes. You can deliver a fridge within 2 hours. Oh my god. Especially we don't deal in that segment, but we can. Okay. So basically he's doing a hyper local quick commerce startup, right? Kritish is an excellent man. Yeah, thank you. So, मैं कृतिश के startup को करता हूँ introduce. Basically, Here it goes. simple language में it is a platform that is delivering cloud and web solutions to a business. चाहे वो business अपने infant scale पे हो, चाहे वो mature हो, चाहे वो किसी भी stage पे हो, Kritish has a solution. In most of the cases. That's not the only thing he is doing. I mean, Okay. हाँ, तो Would you Aniket, like to Unlike- complete? Would you like to Aniket will complete? contribute. Yeah. there is a bigger picture to Kyrex See, than un- that. Oh my Unlike God. Here we go. बोल. क्या? अब मेरे को कैसे पता होगा कृतिश क्या करता है. मेरे को उसका 50% का इक्विटी थोड़ा हो मेरे पास. तो मेरे पास कौन सी है? अच्छा. जिसके पास है उस पे भी हम All आएंगे. me, not me. So Kyrex is basically a business consultancy company which helps businesses to grow in a circular economy to have an effect. यही मैंने अपनी Sounds ऑडियंस like a को definition. यही मैंने अपनी Sounds- ऑडियंस को इजी भाषा में समझा दिया है. Sounds like a definition. ये वही बात होगी 3 इडियट्स की वाली अप डाउन अप डाउन. ओके सो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में जब भी कोई इंसान एंटर कर रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो कई बार गिवन दैट इट्स अ वेरी रिस्की फील्ड टू एंटर इनटू, कई बार ये डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई स्टार्टअप? तो व्हाट इज योर स्टोरी बिहाइंड व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप? Because I am young, बाप का बिजनेस है,
तो अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो वहाँ पे जाने का एक बैकअप ऑप्शन है. तो इस वजह से आई हैव अ विंडो ऑफ लाइक 2 to 3 years until I turn 25, 26. Separately, I am doing my another course. एवरेज बढ़िया माइंडसेट. I have enough security to pursue the startup. इंटरेस्ट और सिक्योरिटी में खेलते रहते हो. आगे बताओ. हाँ चिराग भाई. So, see, इनकी I भी सेम believe- स्टोरी है, कोई ज्यादा नहीं, but more there is a philosophical side to it. See, I believe ये हो गया शुरू. नहीं, literally, I believe कि Baby देखो Ashneer. we have अच्छा. this one life, ओके. okay, Okay. and इस life में you can do anything and there are no limits किक to देख it. क्या है. ओके. Or entrepreneurship is a thing that has no limits to it. So that is the main life part for me, I guess. Really Career part inspiring. for me. Thank you. Literally. तो- क्या फायदा? इट्स मोर लाइक कि मैंने अपना कॉलेज जैसे अभी जस्ट कॉलेज खत्म हुआ तो आई हैड ऑप्शन टू जॉइन द फैमिली बिजनेस. मेरा भी फैमिली बिजनेस है बट एज मेरे पापा ने जैसे बचपन से करा तो आई वाज थिंकिंग कि इवन आई कुड एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, मेक न्यू फ्रेंड्स इन लोगों की तरह और साथ में थोड़ा सा लर्न न्यू थिंग्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक एंड मार्केटिंग आई ऑलरेडी डू बट क्रिएटिंग अ न्यू टीम रिमोट एंड ऑल. बाकी यार बहुत फन है. मेरे को नई चीज़ एक्सप्लोर करनी थी. बाकी एक बार एक रिस्क लेके देखना था. चलो, रिस्क तो आपने यार risk बहुत ले चल लिया रहा है. ना? हाँ आपके आपने साथ ले यहाँ लिया बैठ के बहुत बड़ा रिस्क है हमारा. भाई, अरे रिस्क से इश्क करना सीखो. आए हाय इसको पॉडकास्ट से निकालो यार. So अच्छा after dialogue all मान the लिया भाई. all the taste the thunder, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, all of those philosophies wrapped up, we want to know something interesting about how you started. Because once again, because startups are somewhat risky to enter into, and parents want their children to have a more secure future. तो आप लोग के पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने उन्हें बताया कि आपको स्टार्टअप करना है? हमने तो पहले डर के बारे में बताया ही We नहीं था. never told our parents. एंड स्टोरी भी ऐसी थी कि लाइक वी वर इन लास्ट ईयर ऑफ अवर कॉलेज, ओके, एंड तो हमारे पास एक बहाना हमें मिल गया था दैट वी आर डूइंग एन एक्सटेंडेड कोर्स इन द यूनिवर्सिटी. सो हम उसी को बोल के दैट वी वर गोइंग डेली एंड हम डेली वी वर लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स कि हम पहले तो हम रिसर्च कर रहे थे क्या क्या करें. सो पेरेंट्स ऑल्सो डाइजेस्टेड दैट कि यार ठीक है एक्सटेंडेड कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, और दूसरा हमने बोला था कि दैट सारा यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है. So that was our cherry on the top. So parents ने भी इतना मना नहीं करा. So that added was the क्या thing. हुआ that our college wanted NAC A++ credit rating, so they created an incubation center at like 9th floor, so they placed our photographs there. So Yeah, that is a inspiring story. yes, that our college got NAC A++ credit rating because of us. Yes, thank you Aniket. इतना नहीं. भी credit नहीं लेते. तो अबाउट माई पेरेंट्स, so when I told them तो they were like fine you can do it's your time like let's go. ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं था, बहुत न्यूट्रल स्टेट था उनका कि इट्स फाइन यू कैन डू. अभी बैचलर्स के बाद ऑल्सो टुक अ 1 year जैसे कि गैप एंड आई ग्रू इनटू द रेवेन्यू स्टेज. तो दे वर लाइक वेरी फाइन बिकॉज अर्लियर आई स्टार्टेड विद द एडटेक वाला बिजनेस, देन आई थॉट आई विल गेट फंडिंग. आई वाज ट्राइंग टू So कीप देम अच्छा अपडेटेड. कृतिश, I am sorry to interrupt, but ओके. like आपके पेरेंट्स इस डोमेन से नहीं है जिसमें से आप हो, ट्रू. राइट? तो पेरेंट्स को समझाना पड़ा, उनको एक पिच देनी पड़ी कि यार व्हाई दिस बिजनेस. यार एक्चुअली में दे मोर और लेस ट्रस्टेड इन मी. मतलब उनको एक्चुअल में ऐसा समझाना नहीं पड़ा इनटू व्हाट द एग्जैक्टली बिजनेस आइडिया इज. क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा कि इस डोमेन में क्या स्कोप है क्या नहीं है. नहीं एक्चुअली उन्होंने ज्यादा ऐसा करा नहीं. मतलब उन्होंने सोचा कि इट्स मोर लाइक कि इट्स योर लाइफ एंड यू कैन इट्स योर लाइफ योर Because हम टाइम. लोगों को तो हमारे Let's पेरेंट्स go. सेम डोमेन में, तब भी हमें सुनना पड़ा था. I guess it's because technology as a universally known fact is very growing. ट्रू. तो उसमें पीपल एक्सपेक्ट कि अरे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अच्छी नौकरी मिल रही है तो स्टार्टअप में भी पैसा होगा. बट वही है ना कि स्टार्ट उसमें आपको लोग पैसे देते हैं, हाँ. इसमें आपको पैसे लगाने हैं. That's सो true. ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी माइंड में मेरे तो घर वालों को पता भी नहीं चला था कि मेरी कंपनी कब ओपन हो गई. मैंने नहीं, कब? सीए के थ्रू एनओसी लेने के लिए ग्रैंडफादर को ऐसी पेपर्स पकड़ा दिए, उन्होंने साइन कर दिए. हाँ एक दिन प्रॉपर्टी के NOC लिए में- प्रॉपर्टी. फिर एक दिन बैंक वाले घर पे आ गए, तब जाके उन्हें पूछा उन्होंने मेरे से ये क्या हो रहा है ये. अगली बार इनकम टैक्स वाले आएंगे. उनको लगा जीएसटी की रेड पड़ गई.
तो वो सारा केओस हुआ, तब जाके उन्हें पता चला कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर रहे जीएसटी की रेट बढ़ गई हैं। भाई जी उनको लगा जीएसटी की रेट बढ़ गई, बैंक वाले घर पे आ घर गए पे थे। कह रहे भागो ओजी है यार, अनिकेत इसका ओजी है। आई सही है Okay, interesting stories. Building upon this series of stories, जब आप लोग ने फाइनली स्टार्टअप चालू कर लिया, आपका पहला कस्टमर इंटरेक्शन या पहला सेल्स वो कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरेस्टिंग। तो हमारा फर्स्ट कस्टमर इंटरेक्शन क्या था, इट वाज अ B2B डील। सो अनिकेत कॉन्टैक्टेड मी फॉर एसईओ कि इसने बोले यार कृतिश भाई एसईओ करना है, एंड तो स्टार्टेड विद द मतलब सपोज एक एक्स अमाउंट से स्टार्ट हुआ था, तो वो अमाउंट उनसे बात करते करते हमने उनका वेब डेवलपमेंट, सर्वर का प्रोजेक्ट और एसईओ तीनों का प्रोजेक्ट ले लिया। जो एक्स अमाउंट आई थी ना, उसको हम एक तरीके से क्लाइंट के बजट को हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया था। एंड मतलब 3 टाइम्स से भी थोड़ा सा ज़्यादा, बट हमने फिर फाइनली उनको डिस्काउंट देके अप टू 3 टाइम्स उसी प्रोजेक्ट को हमने ऐसा प्रोजेक्ट को ट्रिपल कर दिया, उसका बजट को ट्रिपल कर दिया। एंड देन वी क्लोज द डील। इट टुक अराउंड 20-25 days, बट इट वाज फन। एंड इस बेचारे के साथ बहुत बड़ा मैंने गेम खेला था। काफी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करी हैं लगता है आप लोगों ने। यस। One more thing that I would अब like to अनिकेत add मेरे to- साथ गेम खेलता है। नहीं जिस टाइम पे कृतिश को अपना फर्स्ट ऑर्डर मिला था, अनिकेत के थ्रू मिला था, और अनिकेत के डोमेन भी नहीं था कि वो वेबडी में जाता है या वेबडी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। तभी या तो पता नहीं लगा इसको। इसको मतलब नॉलेज ही नहीं थी, एंड दैट वाज हिज लाइक साइन कि टू गो इनटू दिस फील्ड। ओह Aniket is the most banya that you can ever meet if you had to describe. Right. So me and Chirag had our first sale. Chirag actually designed one Ed At Sheeran Chirag's birthday t-shirt. ना? Yeah, Chirag's and birthday. Chirag's birthday. We got our first sale. Yeah. A happy birthday indeed. So actually जो हमारी जो सेल आई थी, हमारा जो बिजनेस था POD का, we were running it internationally. क्या बोला? We were Aniket? We were running business internationally. POD का? POD का, Print on demand. Okay. So वही था बेसिक। आजकल एंटरप्रेन्योर्स ये शुरू करते हैं, हमने भी वैसे ही शुरू किया था। अनिकेत तभी भी उसमें ही है। No, it's a different segment now. It's Okay. gifting segment. But print on demand. On demand is the inventory management model. हाँ, तो मतलब यही था कि हमने हमारा फर्स्ट ऑर्डर यूके में आया था, बट हाँ दैट इज अबाउट दी अदर स्टार्टअप। ये जो स्टार्टअप है अभी होरेका, विच इज़ द क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसमें जनरली यही था कि जो मेरे को लगा था, एंटिसिपेट किया था कि जिस तरीके से ऑर्डर आएगा, वही आया था कि आई हैड टू कॉल द कस्टमर Okay. कि आप ऑर्डर करो, एंड द कस्टमर डिड। सो एंड इसी से हमारा बिजनेस चल रहा था। The sales, like initial level पे sales को काफी push करना पड़ता है। until your startup is You not have to publicized. exploit your resources. I think that goes with the hassles of building a business. I also exploit my resources. It doesn't mean that. But he's I also don't being, know these but, people. but in return he's also being exploited by someone. दिल का दर्द It's मत a share cycle करो। of अभी- exploitation. अभी मत शेयर करो। कर्मा ऐसी ब्रो, चीजें। कर्मा। कोई बात नहीं। And like family का response एक चीज होती है, and customers का भी experience हमने आपका देखा. But to succeed in a startup, you need a reliable team. People who are supporting you, people who are working the right way, the right work ethic. तो आपकी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Any interns, any seniors? So basically देखो, टीम बिल्डिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फाउंडर हैज टू डू, क्योंकि बिकॉज़ सारी चीजें टीम पे रिलाई होती है। Right. यू हैव अ ब्लूप्रिंट, बट वो एग्जीक्यूट तो टीम ही करेगी ना। But Right? over the period of time, we have excused people. There are some interns. Interns are let me give actually an our illustration. interns are doing Hello brother. brother. They are not Can I have a acting like coffee? interns. They are acting like part of company itself. Like they own the company. Thank you bro. Thank तो you. इतनी रिस्पेक्ट हमें मिलती है। चलो यार, भाई का स्टाइपेंड पे रेज मिलेगा इस बार। अरे by the way, we are hiring, link in bio. एक साल हो गया आप लोग को करीब स्टार्टअप करते हुए। ऐसे में there would be many instances where you tried something, it could not work out. So failed experiments, learnings that came from failed experiments. तो इस बंदे से कॉफी नहीं खुल रही तो स्टार्टअप क्या चलाएगा? न्यूज़ डिबेट अपना खुल गया क्या? सॉरी। okay. Anyway,
So what have you learned? What did you try? What did not work out? अच्छी है. Nothing worked out. हाँ, sorry. Nothing worked out. It was a complete hit and trial. सही में. But ये है कि हाँ. Till now. हाँ, till now it was not Nothing working worked at all. out. But ठीक है, actually पता है, the benefit that we got was of the networking. Suppose Kritish है, ठीक है. If something is not working out, it is because of Kritish. Okay, and if something is working out, it is also because of Kritish. तो ये actually ऐसे codependency में सारा हम लोग चल रहे हैं अभी उस Right. moment. Jokes apart, we faced lot of issues It back was in. not a joke. Okay, whatever. Jokes apart. Whatever. Jokes apart, back in July, we faced lot of issues with the team management, and we were not getting much projects. But over the period of time, we built a perfect team so that we can get time freedom. We are not working 24/7 around the clock. आप we कितने used बजे to do. सोते हो? हाँ, कितने बजे सोते हो? ये कैसा पर्सनल क्वेश्चन है? नहीं, we need to know routines. Very आप important. कितने बजे सोते हो? Like you have saying ना कि मेरे 6 को a.m., 7 a.m., सोते हो. And उठते कितने बजे हो? like 9:30, 10, 11 a.m. Okay. Now you have a hint to startup owners' lives. But I have fun. seriously not that kind of fun at nights. Sorry. And this is a startup podcast. Well done. Very good. इसकी कॉफी नहीं खुल रही. इसने प्रिंट का डैश करके रखा हुआ है. उंगली करके ये क्या है? भाई कहाँ उंगली कर रहा है? इसलिए ही होता है. Maybe that kind of fun. Okay. ओ भाई ये तो सच में अलग ही चला गया. Oh yeah. Oh yeah. yeah. Let's go, Brindash. Okay, so बाकी सबने क्या सीखा, क्या गलतियां करी, कैसे गलतियां सुधारी? मैंने कृतेश ने तो कोई गलती ही करी करी. सबसे बड़ी बात यही है. मेरी बारी बहुत बेकार हुई. अच्छी नहीं है. अभी इसने कॉफी मंगा के गलती करी है. ये मैंने नहीं मंगाई, ये इन्होंने ऑर्डर करी है. कोई बात नहीं, ये भी मेरी गलती है. गलती कृतिश की है, ठीक है. सही में सारी गलतियां मेरी है. तो मैंने क्या गलतियां करी? हाँ, अरे बेस्ट पार्ट, दिस इज माय फेवरेट. तो एक्चुअली आई हैड अ को-फाउंडर. ठीक है. Interesting story. तो आई हैड अ को-फाउंडर. ठीक है. तो उस टाइम में मेरे को को-फाउंडर मिल नहीं रहा था. तो आज लाइक क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था तो आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेज. तो आई हैड अ कॉलेज वाली टीम, वो जो ऐसा मतलब ऐसा जोश में बच्चे नहीं होते, चलो भाई स्टार्टअप करते हैं, ऐसा खुद को अगले दिन टीवीएफ पिक्चर समझना चालू करते, वैसी थी. देन दे लेफ्ट व्हेन दे रियलाइज. तो आई गॉट अ टीम. तो इंटरेस्टिंगली आई पुट अ व्हाट्सएप स्टोरी. तो अ गाय, let's call him suppose Raga. Okay, so the Raga guy just texted me ki let's meet, I am interested. So I texted it to him and he's like let's go. But after some time there was a startup. His startup name is Horeca. That doesn't start without that starts with H, not W. So the thing is ki the Horeca guy just pushed him into playing games and instead of working. तो वो पूरे दिन गेम खेल रहा है. साला ट्रक चला रहा है वो. So हुआ क्या? भाई था भाई वो, मैंने बोला भाई तेरे को ट्रक चलाने कनाडा जा, तू चला भी गया. नहीं यार, कनाडा से नहीं गया, लुधियाना गया था. और वो गया तो गया, 50% चला इक्विटी गया. भी लेके गया. अब बात क्या हुई, चिराग बकचोदी करता है तो वो उतना काम खींच लेता है, बाद में वो कर लेता है. अब इसने एक पहले से ही बर्बाद इंसान को और बर्बाद कर दिया. मैंने सिर्फ उसको गेम से इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई मैं अपने पास टाइम में मैं मेट्रो में आता हूँ तो मैं गेम खेल रहा होता हूँ. इंट्रोड्यूस कराया था, सेड्यूस कर रहा था. इसका पास टाइम किसी का फुल टाइम बन गया, जिस वजह से ये बेचारा जो कि हॉलिडे पे गया हुआ था, हाँ भाई, सोच के कि मेरा पार्टनर है एक जिसके भरोसे कंपनी चल रही है, वो और वहां पे ट्रक चला रहा था. Lesson learned, 50% equity नहीं देता है. सही बात है. वैसे बंदों को 2% भी नहीं देते.
like you should know your partners before you Yeah, trust yeah. them. WhatsApp story के basis पे आप rely नहीं कर सकते अपने partners पे. वैसे इतना तो college final year में भी पता होना चाहिए, but anyway. नहीं, Actually, मुझे actually- बात क्या actually- होती है See. being a अरे एक सेकंड मुझे एक बार अरे आंसर मेरा करने मैंने रुक जा तू. तो द थिंग इज कि ऑन द व्हाट्सएप स्टोरी बेसिस पे इसलिए क्योंकि जो कॉलेज फाइनल ईयर में वो मेरा कॉलेज मेट था नहीं. He was like वो ट्यूशन मेट नहीं होते इन द 9th and standard who's been contacted me after like a long time. So he was that kind of guy कि after like 6-7 years I was बट पता है इसमें ना कृतिश की गलती नहीं थी ऑलटुगेदर बिकॉज फाइंडिंग अ को-फाउंडर इज अ वेरी डेस्परेट टास्क. Yes. True. अगर उसमें अब कोई भी हल्का सा भी इंटरेस्ट दिखा देना आई हैव इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस तो जनरली एक फाउंडर माइंडसेट कहता है यार कि नहीं इसको ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को. Yeah. क्या पता ही इज द वन. तो Like, ये आप Universal sign. Like 3 साल से हम दोनों तो एक ही क्लास में थे. हाँ. हम दोनों को फाउंडर्स बनने वाले थे 50-50% इक्विटी, बट नहीं हुई वो एग्रीमेंट बीच हमें भी में. यूनिवर्सल साइन मिला कि हमें नहीं बनना चाहिए. सो वो दैट इज द थिंग अबाउट दैट. Okay, interesting. And finally, like, nearing to the end of this podcast, काफ़ी इंडिया में भी स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बूम पे है, स्पेशली बैंगलोर एंड अदर सिटीज़. दिल्ली ऑल्सो बीइंग अ मेजर मेट्रो सिटी, यहाँ पे भी मैनी पीपल आर एक्सप्लोरिंग बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स. बट अभी कुछ समय पहले ये थोड़ा मिथ या रियलिटी काइंड ऑफ हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं that there has been this one statement that 90% of Indian startups are copycats. That is true. So, हाँ, आप लोग Basically, क्या you बोलते हैं? don't call it copycat, you call it inspiration. For example, the Airbnb was a original startup and Oyo was an inspiration. क्योंकि when we talk about the global and the Indian market, तो everything from the global market can't be just imported and used. क्योंकि Indianized version एक अलग होता है. इसमें सबसे बड़ी बात होती है कॉस्ट की, क्योंकि ग्लोबल में कॉस्ट का जो स्केल है वो बहुत अलग है. You get a Airbnb for $600-800, बट इंडिया में वो आते आते तुम्हें वो कॉस्ट पे गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो you won't be able, any international business would not be able to sustain directly. Uber का भी एग्जांपल लोगे तो Uber भी जो इंडिया में है तो वो एक इंडियनाइज्ड वर्जन है. तो those startups who are not able to like enter into Indian market through their मतलब price point और other strategies, तो उनके इंडियनाइज्ड वर्जन का इंस्पिरेशन लेके इंडियन स्टार्टअप्स But आ रहे हैं. after a long time, India में we have seen some very fresh ideas also. नहीं, Like fresh ideas तो no, like for example the quick commerce Zepto. Zepto is a altogether fresh idea. Because we have got label हाँ, force. Label globally no force, one is doing 10-minute delivery. Right, but हाँ, like suppose my startup is there, Horeca. We have taken inspiration from Zepto. Okay, but वही है कि you have to find your uniqueness, your USP in the business, and that we are doing. और इसी को इसी की वजह से जो startups होते हैं, जो नए होते हैं, they drive to the success. Okay. So that is the thing. थोड़ा सा तो चलता रहता है. Okay, yeah, true. ऊपर से एक्चुअली पता है रियलिटी में मैं बताता हूँ, इंडिया इज अ वास्ट मार्केट. कितने भी प्लेयर्स एंटर कर जाए ना एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, इट इज नेवर इनफ. अब ये प्रिंट ऑन डिमांड वाला बंदा है, ठीक है, इसकी जो इंडस्ट्री इतनी क्लटेड है, वेब डी वाला बंदा है, इसकी इंडस्ट्री इतनी क्लटेड है, बट दे हैव देयर ओन कस्टमर बेसिस, दे हैव ओन देयर यूनिकनेस, तो उनका चल रहा है बिजनेस. Identifying USPs Yes, is very important. right. And like finally, the very last question that I have for you is, अगर आप अपना startup restart कर सकते, like if you could restart, then what is something that you would do differently? I'll choose a new co-founder. I understand the trauma behind that sentence. I would I can first ask you though. Sorry. To be my new co-founder. That was my plan. Hey, please stop hitting on our host. okay. I would go to build first of all my supply chain, a better supply chain. And I would try to implement things faster. Okay. Basically, because what I have experienced is कि जो मेरे माइंड में होता है ना, अगर मैं उसको एक हफ्ते तक इम्प्लीमेंट ना करूं तो मैं कॉम्पिटिटर्स आर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑलरेडी. Okay. तो मैं राइट तो मैं हूँ, ब्रिलियंट तो मैं हूँ. Understood. That
was very insightful. काफ़ी मज़ा आया आप लोगों से बात करके और काफ़ी कुछ सीखने जानने मिला स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में. आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ नया सीखने मिला हो. एंड कंटिन्यू रखेंगे इसी चेन को. या अगर कृतिश उठ जाए जल्दी से. Powered by या Kyrex. अगर तुम अपनी अलमारियों की चाबियां ना भूलो, 3 घंटा हर चीज को डीले ना करो. नहीं, तो- that was not powered by Kyrex. That was pushed by Kyrex. Yeah. And anyway, guys, it was fun to have you all over. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Bye.